آج ویو 360 میں افغانستان میں صدارتی انتخابات، امن کی راہ ہموار ہوگی یا انتشار بڑھے گا؟ لوگ اب دوسری کوئی فصل کاشت نہیں کر رہے، فش فارمنگ میں اتنا پرافٹ ہے۔ پنجاب میں بنجر زمین سے خوراک کی پیداوار ایکوا کلچر کے ذریعے۔ اور سکل سیل ڈیزیز، خون کا ایک ایسا مرض جو نسلوں کو متاثر کرتا ہے۔ افغانستان میں جنگ اور جمہوری عمل ایک ساتھ، انتخابات کیا معنی رکھتے ہیں؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں سارہ زمان، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت گرنے کے بعد ملک کے چوتھے صدارتی انتخابات میں ووٹوں کی گنتی کا آغاز ہو چکا ہے۔ ابتدائی نتائج 18 اکتوبر تک متوقع ہیں۔ ہفتے کو ہونے والے انتخابی عمل میں اندازاً صرف 20% رجسٹرڈ ووٹرز نے حصہ لیا، جو پچھلے صدارتی انتخابات کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ افغانستان میں موجود مغربی مبصرین کی رائے میں ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہونے کی وجہ طالبان حملوں کا خوف اور ووٹنگ کے عمل میں کئی جگہوں پر تاخیر تھی۔ اس وقت تازہ ترین معلومات کے لیے ہم چلیں گے ہماری نمائندہ عائشہ تنظیم کی جانب۔ افغان قوم کا پہلا مطالبہ امن ہے اور ان انتخابات کے ذریعے ہمیں امن لانے کا موقع ملے گا۔ گستردی بخاطر تقلب، انتخابات میں دھاندلی کی بہت کوشش ہو رہی ہے۔ حکومت میں شامل 2 امیدواروں نے سرکاری تنصیبات کا استعمال کر کے دھاندلی کی ہے اور وہ بیلٹ باکسز کو جعلی ووٹوں سے بھرنا چاہتے ہیں۔ میں افغان طالبان کو جو ان انتخابات کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں یہ پیغام دیتا ہوں کہ عام شہریوں کو دھمکانے سے تمہاری طاقت کا اظہار نہیں ہوتا۔ افغانستان کے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی باتیں آپ نے سنی۔ اس وقت ہم اپنی نمائندہ عائشہ تنظیم کی جانب چلیں گے جو کابل میں موجود ہیں۔ عائشہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج کی تازہ ترین معلومات کیا ہیں، کیونکہ عبداللہ نے ایک پریس کانفرنس کی آج۔ جی بالکل سارا، آپ سے کچھ دیر پہلے ہی عبداللہ جو کہ ٹاپ کے جو 2 صدارتی امیدوار تھے، صدر اشرف غنی اور عبداللہ ان میں سے ایک مانے جاتے ہیں اور جو یونٹی گورنمنٹ میں افغانستان کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو ان انتخابات میں کامیاب قرار دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی معلومات کے مطابق وہ ووٹوں کی اکثریت جیت چکے ہیں۔ انہوں نے صدر اشرف غنی پہ فراڈ کا الزام بھی لگایا ہے۔ اس کے جواب میں الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی امیدوار کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نتائج کا اعلان کرے۔ ابھی ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہے اور ابھی تک تو ان آفیشیل نتائج بھی سامنے نہیں آئے، کیونکہ افغانستان میں جیسا کہ آپ نے بتایا یہ پروسیس لمبا ہوتا ہے، اس میں کئی ہفتے لگتے ہیں اور کم از کم 3-4 ہفتے میں ہمیں پریلیمنری جو نتائج ہیں ان کا پتہ چلے گا۔ اور یہ جو اعلان ہے اس سے افغانستان میں انسٹیبلٹی بڑھنے کے چانسز کافی زیادہ ہیں، اور جس کی کہ توقع یا ڈر بھی تھا بہت سارے مبصرین کو، کیونکہ ایک اور جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں حکمت یار، وہ پہلے ہی یہ پریڈکٹ کر چکے ہیں کہ ان افغانستان کے بعد جو ہے عدم استحکام بڑھے گا ان انتخابات کے بعد۔ انہوں نے بھی صدر اشرف غنی پر فراڈ کا الزام لگایا ہے اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ معاملہ وائلنس کی طرف جا سکتا ہے اور حالت یہاں تک پہنچ سکتی ہے کہ ایون انٹرنیشنل فورسز سے بھی کنٹرول نہ ہو۔ دوسری طرف صدر اشرف غنی کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی کو ڈر ہے فراڈ کا یا کسی بھی چیز کا تو ایک پروسیس ہے، وہ الیکشن کمپلینٹس کمیشن کے پاس جا سکتا ہے اور الیکشن کمپلینٹس کمیشن کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ پوری جو ہے فورسفلی جو بھی آپ کو شکایات آئیں اس کو آپ پروسیس کریں۔ لیکن یہ کہ جو اچھا، یہاں پہ یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ نے آن دا گراؤنڈ کیا دیکھا، کیونکہ دھاندلی کے الزامات مختلف کینڈیڈیٹس لگا رہے ہیں، آپ الیکشن ڈے پہ وہاں موجود تھیں، آپ نے کیا دیکھا اور پھر ووٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ بھی اس پروسیس میں کسی قسم کے کہہ لیجیے کہ اعتبار کا اظہار کر رہے ہیں یا ان کو بھی اس میں اب یقین نہیں ہے؟ دیکھیے، میں کابل کے کئی پولنگ اسٹیشنز میں گئی اور ہماری ٹیم پورے افغانستان میں پھیلی ہوئی تھی، کسی نے اس طرح کی دھاندلی ہوتے تو نہیں دیکھی کہ بیلٹ اسٹفنگ ہو رہی ہو، کیونکہ بہت ہی ایک روبسٹ پروسیس تھا۔ ہر ووٹر کی رجسٹریشن ہونی تھی، ان کے آئی ڈی کارڈ پہ اسٹکر ہونا تھا، پھر ان کی فنگر پرنٹس ہونے تھے، پھر ان کی تصویر ہونی تھی، اور میں نے کم از کم یہ دیکھا کہ کابل میں جو بیلٹ باکسز تھے وہ تقریباً ووٹنگ کے اختتام تک خالی تھے۔ 1/4 سے زیادہ بھرا ہوا مجھے کوئی بیلٹ باکس نظر نہیں آیا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی تھا کہ کچھ ووٹرز، چند ووٹرز ایسے بھی تھے جو آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے رجسٹریشن کرائی تھی، ہمارا نام رجسٹریشن میں نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو چھوٹی موٹی ووٹر کمپلینٹس تھی ہمیں نظر آئی، لیکن
पूरे अफगानिस्तान से हमारी किसी टीम ने कम अज कम बैलेट स्टफिंग टाइप की किसी चीज़ की रिपोर्ट नहीं की। थैंक यू सो मच। आयशा तंजीम हमारे साथ थी काबुल से, और हमें काबुल में जो वोटिंग का अमल हुआ हफ्ते के रोज़ उसके बारे में बता रही थी, और वॉइस ऑफ अमेरिका की टीम जैसे उन्होंने कहा पूरे मुल्क भर में फैली हुई थी। तो मज़ीद अपडेट्स भी हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। लेकिन अफगानिस्तान में इंतखाबात मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए क्या मानी रखते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे हमारे आज के मेहमान तज्ज़ियाकार से, अफ़गान उमूर के माहिर जनाब जहांगीर खटक, जो इस वक्त न्यूयॉर्क से हमारे साथ हैं। जहांगीर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जिस तरह आपने भी सुना, आयशा तंजीम ने बताया कि एक बड़ी ब्लीक पिक्चर पेंट कर रहे हैं जो कैंडिडेट्स हैं, उनको भी ये डर है कि इंतखाबात के बाद मज़ीद इंतशार फैलेगा और हालात ख़राब हो सकते हैं जो इंटरनेशनल फोर्सेस के कंट्रोल में भी ना आए। जब इंतखाबात में इतनी कम वोटर टर्न आउट हुई है तो इससे अफ़गान जमहूरियत की सेहत और ख़ास तौर पर उस पर अफ़गान अवाम के यकीन के बारे में आप क्या नतीजा निकालेंगे? देखिए, हमेशा के लिए अफ़गानिस्तान में जो गुज़श्ता 3 इंतखाबात हुए हैं 2001 के बाद, उसमें वोटर टर्नआउट आप देखिए, पहले इंतखाब में 90% था, और जो लास्ट इंतखाब हुआ था 2014 में जिसमें अशरफ गनी साहब बाद में एक मुतनाज़ इलेक्शन था, वो भी काफ़ी, जिस पे 60% टर्नआउट था। और इस दफ़ा जो अभी अर्ली जो प्रोजेक्शंस आ रही हैं, वो जिस तरह अभी आयशा ने भी बताया 20 to 25% तकरीबन बात चल रही है। इसके नतीजे में कोई भी हुकूमत में आए, मेरा ख्याल है कि डिविजन्स बढ़ेंगी, क्योंकि देखिए 18 कैंडिडेट्स थे, और वो भी एक आपको डिवीजन नज़र आता है, काफ़ी उसमें एथनिक लाइन्स पर भी कैंडिडेट थे। फिर अफगानिस्तान में उमूमन जो गुज़श्ता इंतखाबात में देखा गया है, वोटिंग पैटर्न ऐसा नज़र आया है कि एथनिक लाइन्स पर वोट दिया जाता है, कोई जिसका मतलब ये है कि अगर इंतखाब में वोटर टर्नआउट कम भी हो तो उसके बावजूद आपकी जो एथनिक डिविजन्स हैं वो मज़ीद डीपन हो रही जगह पे ही रहती हैं। अच्छा, ये बताइएगा जहांगीर साहब कि जब ऐसे इंतखाबात के नताइज सामने आएंगे, अगर सिर्फ 20% के करीब वोटर टर्नआउट होती है और जैसे आपने भी कहा एथनिक लाइन्स के अलॉन्ग वोट होता है, तो इसके बाद जो भी हुकूमत बनती है वो कितनी मजबूत होगी और उसके पास कितना इख्तियार होगा कि वो तालिबान से भी मुज़ाकरात कर सके और अमेरिका के साथ भी मामलात को आगे बढ़ा सके? मेरा ख्याल ये है कि उनके लिए एक बहुत मुश्किल काम होगा। उसकी वजह यह है कि जिस तरह मैंने कहा कि पहले तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही है, और उसकी इब्तिदा आपने देख ली डॉक्टर अब्दुल्ला की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका दावा है, वो पहले ही दिस इज़ द फर्स्ट शॉट, और इसके बाद आप देखिएगा इसका एक रिपलिंग इफेक्ट होगा, स्नोबॉल इफेक्ट होगा, और उसके बाद वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। और अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो जाहिर है कि हुकूमत में कोई भी हो, उनकी अमेरिका या तालिबान के साथ बातचीत में उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड होगी, वो बहुत वीक पोजीशन में होंगे, और जिसका मतलब जाहिर है कि अफगानिस्तान एक मरतबा फिर खुदा ना करे, लेकिन मुझे लगता है कि फिर सिविल वॉर की तरफ जा सकता है, अगर ना तो एग्रीमेंट हो, ना विथड्रॉल हो, और हुकूमत ऐसी है जो कि 20% या 25% के वोटर मैंडेट के बाद आई है, और अभी उसमें भी तकरीबन 3 हफ्ते का टाइम लगेगा, 19 अक्टूबर तक रिजल्ट्स का एक्सपेक्टेशन है। तो इतने टाइम में मेरा ख्याल है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रिजल्ट आने से पहले ही मुझे लगता है बढ़ जाएगी, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल्ला की ये मूव है, ये काफ़ी डेंजरस है मेरी राय में, जो डिस्टेबलाइज कर सकती है। मजीद आखिर में मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे, तालिबान ने एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 400 हमले किए इलेक्शन डे पे, लेकिन कहीं भी भारी नुकसान नहीं हुआ और वोटिंग भी नहीं रुकी। इससे तालिबान की स्ट्रैटेजी और कह लीजिए कि उनकी इस प्रोसेस को मुतासर करने के हिसाब से जो हिकमत अमली थी, क्या वो कामयाब होती नजर आई? मेरा ख्याल है कि तालिबान के हमले भी हैं जो कि डेफिनेटली अफ़गान हुकूमत और अफ़गान आर्मी को फुल क्रेडिट देना चाहिए, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, यानी काफ़ी उन्होंने अभी भी आज भी खबर है कि उन्होंने 2 तालिबान के हमले रिपल्स किए हैं 2 मुख्तलिफ प्रोविंसेस में। तो उनकी जो सिक्योरिटी सिचुएशन थी वो भी थी, लेकिन ये भी ध्यान में रखिए कि अफ़गान वोटर सिर्फ इस वजह से बाहर नहीं निकला मेरी राय में कि तालिबान के हमलों का ख़तरा है, बल्कि बहुत सारे लोग अफ़गान हुकूमत से पहले भी बहुत ज़्यादा लाना है, वो उनसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, नाला हैं, और वो नहीं चाहते कि उनको वोट की बेसिकली कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो भी हुकूमतें आई हैं वो अब तक डिलीवर नहीं कर पाई, और उनका जो सिस्टम है उससे एतमाद भी हट रहा है। ये भी एक इंडिकेशन पढ़ी जा रही है, यानी उसको सोचा जा रहा है कि शायद ये भी एक इंडिकेशन है कि अफ़गान हुकूमत की जानिब से फिर जो प्रोसेस है वो कितना ट्रांसपेरेंट है। देखिए, जो अफ़गान इलेक्शन का प्रोसेस है उसकी ट्रांसपेरेंसी पर हमेशा से सवालात उठाए जाते रहे हैं। जी बिल्कुल, उसकी वजह से भी फिर लोग मुतनफ़िर हो जाते हैं प्रोसेस से कि जी क्या फ़ायदा, अपनी जान भी ख़तरे में डालें, और अगर हम वोट डालें भी तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसको कुछ असर नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि खुदा करे कि ये मामलात इस तरह ना हो जैसे कि हमें नज़र आ रहे हैं,
لیکن لگتا یہ ہے کہ مجھے انسٹیبلٹی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. انسٹیبلٹی آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. افغان الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ ماضی کے مقابلے میں یہ ووٹ زیادہ شفاف تھا. جہانگیر خٹک ہمارے ساتھ تھے نیو یارک سے. افغان امور کے سینئر تجزیہ کار, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو. اور افغانستان میں انتخابات سے متعلق اپڈیٹس کے لیے آئیے ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر. لاگ آن کیجیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. اور آپ بھی اس پروسیس کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں اور افغانستان کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے. سکل سیل ڈیزیز خون کی ایک موروثی بیماریوں کا گروپ ہے اور اس کے مریض کے جسم میں سرخ خلیے متاثر ہوتے ہیں. مریض کے جسم میں شدید درد ہوتی ہے اور اس کے کئی اعضاء کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. امریکہ میں ستمبر کا مہینہ سکل سیل کے مرض کے نام کیا گیا ہے تاکہ اس کے بارے میں آگاہی پھیلائی جا سکے. صبا شاہ خان بتا رہی ہیں کہ امریکہ میں اس مرض کو قومی سطح پر منانے کا فیصلہ کیوں کیا گیا. سکل سیل ڈیزیز سے اس وقت امریکہ میں تقریباً 1 لاکھ بچے اور بڑے متاثر ہیں, جبکہ دنیا بھر میں کروڑوں لوگ اس عارضے کا شکار ہیں. سکل سیل انیمیا میں خون کے سرخ خلیے سخت چپچپے اور ہلالی شکل اختیار کر لیتے ہیں. یہ خون کی نالیوں میں پھنستے ہیں اور جلدی مر جاتے ہیں. اس سے جسم میں خون کے سرخ خلیوں کی مستقل کمی, درد اور دوسرے سنگین مسائل پیدا ہوتے ہیں. اکثر 6 ماہ کی عمر میں انہیں تکلیف ہونے لگتی ہے, ہاتھ پیر سوج جاتے ہیں اور اگر وہ پینسلین پر نہ ہو تو انہیں سیریس انفیکشن ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی تلی کام نہیں کر رہی ہوتی. یہ دونوں بہنیں جو چلڈرنس نیشنل ہسپتال کے سکل سیل اویئرنیس ایونٹ میں شریک ہیں خود بھی اس مرض سے متاثر ہیں اور اپنی چھوٹی بہن اس مرض میں کھو چکی ہیں. ایلن گوندا کی بیٹی ماگدلی میں پیدائش کے وقت یہ مرض تشخیص ہوا. اب وہ 17 سال کی ہے. وہ کہتے ہیں یہ بیماری مریض کے ساتھ پورے خاندان پر اثر انداز ہوتی ہے. ایلن کو نوکری چھوڑنا پڑی. وہ اب ایک میڈیکل سٹارٹ اپ چلا رہے ہیں جو سکل سیل کے معالج کو مریض کی حالت سے باخبر رکھتی ہے. اسے بچپن میں کئی دفعہ تکلیف ہو چکی ہے. وہ اس اسپتال میں تقریباً 150 بار داخل ہوئی ہے. کچھ لوگوں کا مرض شدید ہوتا ہے تو ان بچوں اور ان کے گھر والوں کو بہت محبت کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر کیمبل کے مطابق مرض کے مکمل خاتمے کے لیے اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ موجود ہے, لیکن اس میں میچ ملنا اور دیگر مشکلات ہیں. اس کے علاوہ مرض کو قابو میں رکھنے کے لیے اس وقت 2 ادویات دستیاب ہیں, ہائیڈرو آکسی یوریا اور ایل گلوٹامین, جو 2017 میں منظور ہوئی. واشنگٹن میں واقع چلڈرنس نیشنل ہاسپٹل امریکہ کے چوٹی کے ہسپتالوں میں سے ہے. یہاں آنے والے مریضوں کو علاج کی بہترین سہولیات میسر ہیں, لیکن دور دراز علاقوں میں مریضوں کے لیے حالات مشکل ہیں. تو ہم انٹرنیٹ کے ذریعے کام کر رہے ہیں تاکہ اسپیشلسٹ چاہے وہ بوسٹن میں ہی کیوں نہ ہو, مسیسپی میں بچے یا نوجوانوں کی مدد کر سکیں اور انہیں بہترین کیئر ملے. مرض کی تشخیص اہم ہے. بغیر اس کے کچھ مریضوں کی زندگی شاید بچپن میں ہی ختم ہو جائے, لیکن صحیح نگہداشت اور علاج ملنے کی صورت میں یہ مریض 40 سال سے زیادہ تک بھی جی سکتے ہیں اور کسی حد تک اپنی مقررہ عمر پوری کر پاتے ہیں. ڈاکٹرز کو مستقبل کے لیے سکل سیل مرض کی جین تھراپی ٹرائلز سے امید ہے کہ یہ مرض ختم کرنے میں کامیاب رہے گا. ماگدلی جن کا اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا وہ بھی ان ٹرائلز میں شریک ہوں گی. صبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. اور جیسا کہ ہم نے اس رپورٹ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ سکل سیل ڈیزیز موروثی بیماریوں کا ایک گروپ ہے. یہ مرض جو ہے زیادہ تر افریقی نژاد اور اس کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والوں میں نظر آتا ہے. پاکستان میں بھی یہ ایک بڑا ہیلتھ ایشو ہے. پاکستان کی بات آگے بڑھاتے ہیں. ملک میں آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ خوراک کی طلب بھی مسلسل بڑھ رہی ہے. اس ضرورت کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے ایکوا کلچر یعنی آبی حیات کی افزائش. پاکستان میں یہ شعبہ سالانہ تقریباً 10% کی شرح سے ترقی کر رہا ہے. محکمہ ماہی پروری پنجاب چھوٹی سطح پر کام کرنے والے کسانوں کو اس کاروبار کی جانب لانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ اس سے بنجر زمین رکھنے والے کسان بھی منافع کما سکتے ہیں. اس بارے میں آج مزید بتا رہی ہیں سمن خان. پاکستان کے صوبہ پنجاب میں مچھلی بھلے ہی موسم سرما کی سوغات ہے لیکن اس کی افزائش موسم گرما میں ہوتی ہے. مقبول غذا ہونے کے باعث اس کی مختلف اقسام کی پیداوار بہتر بنانے کے لیے لاہور میں قائم مناوا ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں کام ہو رہا ہے. افزائش کے موسم میں مچھلی کے انڈوں کو محفوظ طریقے سے نکال کر پالا جاتا ہے اور پھر بچہ مچھلی کو کسانوں میں کم پیسوں میں فروخت کر دیا جاتا ہے.
यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी सैलिनिटी पे कौन सी फ़िश जो है वो बेहतर ग्रो कर सकती है। तो ये जो हम रिज़ल्ट्स आते हैं हमारा जो वो हम शेयर करते हैं अपने फार्मर के साथ। डाटा हमारे पास मौजूद है कि किस एरिया में पानी जो है वो सूटेबिलिटी लेवल क्या है, सॉइल की सूटेबिलिटी लेवल क्या है, उसके साथ फ़िश की सूटेबिलिटी जो है वो भी हम डिटरमिन करते हैं कि इस एरिया के लिए जो ये फ़िश है ये ज़्यादा सूटेबल कर। पंजाब में महकमा माही परवरी की 19 हैचरीज और 34 नर्सरियों के अलावा 70 से ज़ायद निजी हैचरीज हैं। निजी सतह पर बनने वाले ये फार्म्स किसानों को महकमे की जानिब से मिलने वाली तरबियत और आगाही के बाद शुरू किए गए। एक्सकवेशन है वो तकरीबन 1 लाख रुपए पर एकड़ जो है ना एक्सपेंडिचर आता है एक्सकवेशन का। एक्सकवेशन जो है वो फॉर वंस जो है ना वो इसकी होनी है। उसके बाद उसके पानी का मेंटेनेंस है। अगर जहाँ जो वाटर लॉक्ड एरिया है वहाँ तो पानी का एक्सपेंडिचर और कम हो जाता है। देही इलाकों में मालूमात रखने वाले किसान मिट्टी में ज़्यादा नमी के बाइस सेमोथोर से मुतासरा ज़मीनों पर फिश हैचरीज बनाने को तरजीह दे रहे हैं। लोग अब दूसरी कोई फसल काश्त नहीं कर रहे, इसमें इतना प्रॉफिट है ये फ़िश फार्मिंग में। वो कम से कम मेरी फार्मर से मुलाकात हुई है, वो कहते हैं हम 4-5 लाख रुपया जो है ना वो आसानी से कमा लेते फ़ी एकड़। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़िश बायोडाइवर्सिटी सेंटर्स में नापैद और ख़त्म होती मछलियों की नस्ल आगे बढ़ाने पर तहकीक होती है। मछलियों की मुख्तलिफ इक़साम पर की जाने वाली तहकीक से लेकर अफजाइश नस्ल के अलावा एक मरहला इस आबी हयात को दरियाओं, नहरों और फिश फार्म्स के पानी में छोड़ने का आता है, जिसके लिए सूबे भर में एक मुनज़्ज़म नेटवर्क मौजूद है। यहाँ ज़ख़ीरा की गई मछली को पानी में छोड़कर उसकी नस्ल की बढ़ोतरी को यकीनी बनाना अहम मकसद है। पाकिस्तान मछली दरामद करने वाले ममालिक में सरे फहरिस्त है और मुतल्लिका महकमे की कोशिश है कि फ़िश फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाए ताकि मुल्क इस शोबे में खुद कफ़ील हो सके। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, चनावा, गुजरात। चलें इधर इधर थोड़ा सा थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। और अब आइए आपको दिखाते हैं अमेरिका में स्ट्रीट फूड या ढाबे की एक नई किस्म जो बहुत मकबूल हो रही है, और वो हैं फूड ट्रक्स। अमेरिका में फूड ट्रक्स का बिजनेस 2008 में मकबूल हुआ। ये वो वक्त था जब इस मुल्क में माशी बहरान के बायस तकरीबन 20 लाख लोग अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे थे। तो असदुल्ला खालिद आज बता रहे हैं कि वाशिंगटन में फूड ट्रक्स का ट्रेंड कैसे रोज़गार पैदा कर रहा है और मेरे जैसे ऑफिस वर्कर्स की लंच ब्रेक को मज़ेदार बना रहा है। हमजा परवेज के वालिद ने 2011 में एक हलाल फूड ट्रक से वाशिंगटन डीसी में अपने फूड ट्रक के काम का आगाज़ किया था। इस वक्त हमजा 2 फूड ट्रक संभालते हैं। मेरे पास कई कस्टमर्स हैं जो कि मेरे पास 6 से 7 साल से आ रहे हैं और मेरे वालिद साहब को भी अभी तक याद रखते हैं। लॉयल्टी जो इसमें एक बिज़नेस में मुझे मिली अपनी कस्टमर्स की तरफ, दैट्स द बिगेस्ट थिंग आई कैन एवर हैव। अमरीकी दारुल हुकूमत के महकमा सेहत के मुताबिक वाशिंगटन डीसी और इसके आसपास के इलाकों में इस वक्त तकरीबन 500 के लगभग फूड ट्रक्स कारोबार कर रहे हैं। ये ट्रक आपको दुनिया भर के तरह तरह के खाने बेचते नजर आएंगे। हमने ये भी जाना कि लोगों को इस तरह के खाने पीने की जगहें अच्छी लगती हैं जो कि मोबाइल भी हैं। इसको चलाने में बड़ा हाथ फास्ट फूड इंडस्ट्री का है, जहां खानों की बहुत ज्यादा वैरायटी मौजूद है। लोगों को इस जगह आना अच्छा लगता है जहां इन्हें मुख्तलिफ तरह के खाने दस्तयाब हों। हमसे बात करने वाले फूड ट्रक मालिकान और दूसरे सोर्सेज के मुताबिक अक्सर फूड ट्रक का कारोबार औसतन $30,000 से $2 लाख तक में शुरू किया जा सकता है। यकीनन ये एक रेस्टोरेंट को खोलने के लिए दरकार सरमाए से कम रकम है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फूड ट्रक का कारोबार चलाना किसी रेस्टोरेंट को चलाने से कोई बहुत ज़्यादा आसान है। इस कारोबार की अपनी मुनफरिद मुश्किलात हैं। मसलन अगर आप खाना बनाने में वक्त ले रहे हैं तो शायद आपके ग्राहकों की लाइन इतना इंतज़ार नहीं कर सकेगी। लोगों के पास टाइम नहीं है इतना यहाँ पे, दे वांट फ्रेश फूड, टाइम में चाहिए, जल्दी चाहिए, क्योंकि उनके पास 30 मिनट्स की ब्रेक होती है, उन्होंने सब कुछ में फूड भी खाना है, सब कुछ करना है, सो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा उनका टाइम वर्थ करता है 30 मिनट्स। किसी भी दूसरे बिजनेस की मानद फूड ट्रक के बिजनेस की कामयाबी के लिए भी मार्केट में मांग का दुरुस्त अंदाजा करना इंतहाई ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि ये सबसे ज़रूरी है, अपनी रिसर्च करें, खुद इसका हिस्सा बने। जो पहले से फूड ट्रक के कारोबार में हैं, इनसे बात करें और समझें, इन्हें खुशी होगी आपको गाइड करने में। अमेरिका में मुख्तलिफ सरकारी महकमे इस कारोबार को रेगुलेट करते हैं, जैसे कंज्यूमर और रेगुलेटरी अफेयर्स का महकमा, जो 2 साल के लिए लाइसेंसेस का इजरा करता है, जिसमें आपकी कंपनी का नाम, कारोबार की नौइयत और आपको किस जगह पर कितनी देर के लिए अपना फूड ट्रक खड़ा करने की इजाज़त होगी, ये सब मालूमात शामिल की जाती हैं। महकमा सेहत यकीनी बनाता है कि इन ट्रकों पर बिकने वाला खाना सेहत के उसूलों के मुताबिक हो। हम खाने के तमाम ट्रकों का मुआयना करते हैं, लिहाजा हर 6 माह बाद फूड ट्रक को महकमा सेहत से अपने सर्टिफिकेट की तजदीद के लिए दोबारा मुआयना करवाना पड़ता है। इसके अलावा हम फील्ड में मामूल के मुआयने भी करते हैं और अगर हमें कोई शिकायत मौसूल होती है तो गैर एलानिया छापे भी मारे जाते हैं। सार्फिन भी मुख्तलिफ अक़साम के खानों की ऑप्शन से खुश हैं। भूख में ये सस्ता और फौरी हल है। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको फूड ट्रक पर घर के खाने जैसा खाना मिलता है और ये रेस्टोरेंट्स की निस्बत सस्ता भी है। थैंक यू। जहाँ एक तरफ कस्टमर्स के लिए ये फूड ट्रक्स बेहतरीन खाने का और जल्द खाने का जरिया है, वहीं पे ये हज़ारों ख़ानदानों के लिए रोज़गार का वसीला भी है। असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। फूड ट्रक्स का बिजनेस कितना मुनाफा बख्श हो सकता है और उसे चलाने वालों को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, ये भी हम आपको दिखाएंगे व्यू 360 में। बहुत मुश्किल है कि आपको कोई अच्छी लोकेशन मिले, जैसे कि आज मैं यहाँ ली फान प्लाजा में हूँ। ये एक लॉटरी है। हर सुबह हम 5 बजे घर से निकलते हैं और घर वापस जाते हुए रात के 9 या 10 बज जाते हैं। तो ये तकरीबन 6 से 7 हज़ार डॉलर बनते हैं। मुकम्मल रिपोर्ट के लिए आपको कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा और आखिर में एक बार फिर चलेंगे पाकिस्तान, जहां किताबों के खरीदारों की तादाद तो कम हो रही है लेकिन किताबों की कीमतें बढ़ रही हैं। तो लिखने वाले, पढ़ने वाले और किताबें फ़रोख्त करने वाले क्या सोच रहे हैं, जानते हैं आज गेतियारा अनीस की इस रिपोर्ट में। किताबें पढ़ने का कम होता रुझान कोई नई खबर नहीं, लेकिन किताबों की मुसलसल बढ़ती कीमतें, ख़ास तौर से ऐसी किताबों की खरीदारी पढ़ने वालों के लिए मुश्किलात का सबब बन रही है जिनकी कीमत गैर मुल्की करेंसी में दर्ज होती है। खरीदारों के लिए गैर मुल्की करेंसी के मुकाबले में रुपए की आए दिन बदलती और अक्सर गिरती हुई कदर दर्द सर बनी हुई है। इनको उस तरह कॉस्टली नहीं पड़ती जिस तरह एक्चुअली वो बाहर उनकी कॉस्ट होती है, और वो करेंसी को कन्वर्ट करके तो उसको देखें ना, ठीक है। अक्सर बुक्स हैं जो हम टैग लगा होता है ऊपर प्रिंटेड होती है प्राइस, तो वो 14-15,000 जो अगर उसको हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो बनती है। एक फ्री मार्केट के अंदर एज ए रीडर अगर हम देखें तो रीडिंग का रुझान पाकिस्तान में एज सच बढ़ नहीं रहा, लेकिन फिर भी प्राइस बढ़ने की रीज़न क्या है? ये तो इक्विवेलेंट अगर देखा जाए मार्केट इकॉनमी के है तो ये चीज़ उसके अगेंस्ट आती है जो आपके इकनॉमिक नॉर्म्स होते हैं। और दूसरा, एज ए रीडर टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन चीज़ों से हम डीमोटिवेट तो होते हैं। किताबें लिखने वाले अक्सर इस मसले का जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान में किताबें लिखना काफ़ी नुकसान का काम है, जिसकी वजह अदब और अदीब दोनों में रियासत की अदम दिलचस्पी है। हन्नान अब्बासी जैसे नए मुसन्निफ गैर मुल्की करेंसी में दर्ज किताबों की इन कीमतों से इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि पढ़ने वालों की तादाद में कमी बिल आखिर इनको भी मुतासिर करती है। मुख्तलिफ जो पस मंज़र रखने वाले लोग जब इस्लामाबाद आते हैं तो उनको राशि सहूलियात के लिए, बाकी चीज़ों के लिए भी अखराजात चाहिए होते हैं। तो ऐसे में जब वो तहकीकी किताबें देखते हैं तो वो कोई अगर 3,000 की है, 5,000 की है, 7,000 की है, तो वो उनके लिए परचेजिंग पावर उतनी नहीं होती। और अनफॉर्चुनेटली वो किताबें जो है उनके लिए अगर ऑनलाइन भी मुयसर हों तो वो उनको डॉलर्स में पे करना पड़ता है। गैर मुल्की करेंसी के प्राइस टैग वाली किताबें वही हैं जो बाहर से बरामद की जाती हैं। किताबें पढ़ने वाले और लिखने वाले दोनों ही इनकी ज़्यादा कीमतों की वजह से परेशान हैं, तो फिर आखिर किताबें बेचने वालों को किस बात की परेशानी है? किताबें फ़रोख्त करने वालों का मौक़िफ़ है कि गैर मुल्की पब्लिशर किताबों की कीमतें पाकिस्तानियों की क़ुव्वत ख़रीद को सामने रखकर मुतय्यन करते हैं, लेकिन उनके लिए वबाल जान पायरेसी है जिसका इलाज उनके पास नहीं। जो किताब फॉन्सन $10 की है वो हमें £2 या $2 ही दे रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका ब्रेक इवन हो, उनकी प्रेजेंस हो हमारी मार्केट में।
मगर वो $2 की किताब भी हमें इम्पोर्ट करके शिपिंग करके तकरीबन $4 की कॉस्ट कर जाती है, तो हम $4 की सेल करते हैं वो किताब। इसी के साथ ख़त्म होता है आज का व्यू 360। facebook.com/view उर्दू के पेज पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।